اپریل کا دن اہلیہ بارکس کے لیے دو طرح سے اہمیت کا حامل ہے، دو طرح سے اہمیت کا حامل ہے۔ ایک تو آپ کو اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ میں محترم محمد اعظم خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ اسے نہیں تشریف لائیں۔ دو طرح سے اہمیت کا حامل ہے، ایک تو آپ کو اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کرنا ہے، اور دوسرے اس واقعے میں شہید ہونے والے ابراہیم یافعی کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے اور ان کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے آپ اپنی طاقت کا استعمال ووٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اور آج جو مسائل محمد پہلوان اور ان کی فیملی پہ زبردستی مسلط کیے گئے ہیں، ان کا ادراک کرنے کے لیے، ان کا سبسیوات کرنے کے لیے، انہیں ان مسائل سے نجات دلانے کے لیے میں گزارش کروں گا پس پردہ سننے والی میری دختران ملت سے کہ وہ ابراہیم یافعی کو یاد کریں اور 30 اپریل کے دن بھاری اکثریت سے مجلس بچاؤ تحریک کے امیدواروں کو کامیاب کریں اور قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ آئیے میں تلنگانہ سے قائد محترم امجد علی خان المعروف امجد سے گزارش کروں گا اور یہ خطاب انہی کی نظر کروں گا، مگر شرط یہ ہے کہ آپ کے تصور میں قاضی ملت رہیں۔ عنوان زندگی ہے تیرا نام اے امان، در سے حیات ہے تیرا پیغام اے امان، بدلا ہے ذہنیت کو تیرے انقلاب نے، کتنا عظیم ہے تیرا اقدام اے امان۔ میں گزارش کروں گا محترم امجد شیخ سے قبل اس کے کہ میں عیسیٰ بہجاب صاحب کو رحمت ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو عنوان جلسے کی بیداری الحاج مان رحمان صاحب نے 1953 سے اس کا آغاز کیا تاکہ قوم کا شعور بیدار ہو سکے اور قوم اس سے جاگے۔ جن چیزوں سے قوم میں ناانصافی ہو رہی ہے اور جن چیزوں سے تکالیف سے قوم گزر رہی ہے کہ ہماری آواز حکومت تک پہنچے اور رہنماؤں تک پہنچے اور آپ کا شعور بیدار ہے۔ روز اول سے یہی مقصد تھا کہ آج مجلس بچاؤ تحریک کس وقت سے قائم ہوئی آپ سبھی لوگ جو جانتے ہیں، اور اس کے بعد یہ حالات ہر نوجوان جانتا ہے۔ میں یہاں پہ سمجھتا ہوں آنے والی نسل بھی یہ تو جانے کی، مگر بہت سارے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی کیا ضرورت ہے، اختلاف کی کیا ضرورت ہے، دور کرنا چاہیے، بالکل اتحاد ہونا چاہیے، مسلمان ایک ہونا چاہیے، ایک آواز جن بنیاد پہ دارالسلام کی ایک اینٹ رکھی گئی اور جس عنوان سے بنایا گیا اس بنیاد پہ بالکل ہی ہم جیسا بالکل تیار ہے کہ ہم ایک کلمہ، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم سب ایک ہونے کے اندر تیار ہیں۔ مگر آج جو قابل جو ملا عناصر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف ہم یہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نہ کوئی ذاتی مفاہمت، نہ کوئی ذاتی دشمنی، نہ کوئی برائی ہے، مگر ہمارا ایک ہی ماننا ہے کہ ہر ایک مسلمان کا، ہر ایک کلمہ گو بھائی کا حق جیسا تازہ ہونا چاہیے۔ وہ کیسا ہوگا؟ وہ کیسا ہوگا؟ کیوں آپ کیا ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرتے؟ کیا آپ صابن استعمال نہیں کرتے؟ کیا آپ ایسی کوئی جو گورنمنٹ جس پہ ٹیکس لگاتی ہے کیا وہ آپ استعمال
है गवर्नमेंट, वो आपका हक है, वो गवर्नमेंट टैक्स के जरिए वसूल कर आपके ऊपर इस्तेमाल करने का गवर्नमेंट का रुझान रहता है। जब आपने तो देखा है कि मुसलमानों के बच्चों के साथ नाइंसाफी क्यों, हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी क्यों, हमारे बच्चों की पढ़ाई के साथ क्यों नाइंसाफी, क्यों बजट में क्यों कभी हिस्सा होने के बावजूद भी बजट क्यों वापस होता है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है 2013 और 14 का जो बजट 1027 करोड़ रुपए जो कायम किया गया था किरण कुमार रेड्डी, उसमें से सिर्फ 425 करोड़ रुपए इस्तेमाल हुए, बाकी का बजट पूरा वापस हो गया। ये इसकी वजह क्या है कि ये इनकी नाराजगी है, ये इनकी कोताही है, ये इख्तियार आपको डुबाकर आपके इख्तियार हासिल कर रहे हैं मगर आपके साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। ऐवान में ये बैठ के खामोश आपके ताल्लुक से बात नहीं कर रहे हैं, ना हमारे बच्चों के ताल्लुक से बात कर रहे हैं, ना हमारे बच्चों की पढ़ाई के ताल्लुक से बात कर रहे हैं। ये क्या वजह है? जब हम आपको वोट देकर ऐवानों तक पहुंचे ताकि हमारे मसाइल हल हो सके, हमारी बात ऐवान में हो सके, वही वजह है हम आपको ऐवान में भेजे। ना हमारे को कुछ चाहिए, ना आप कुछ देने वाले हैं। आप जो हजारों करोड़ के सौदे करते हुए, हजारों करोड़ में कौम को बेचते हुए जिस तरीके से वक्त जायदादों की तबाही हुई है, उसी तरीके से लैंड होल्डिंग का भी मसला है। उसके अंदर 2000 करोड़ रुपए जिसके असदुद्दीन की पार्टनरशिप में 2000 करोड़ का फायदा आया। यही है कि आप तक आपका बजट पहुंचना चाहिए और आपके साथ जो पूरी इंसाफ हो सके और हमारे बच्चों के साथ स्कॉलरशिप मिल सके, जिन गवर्नमेंट के स्कीम्स है वो पूरे मिल सके। और रही बात 75 करोड़ रुपए, जब आवाज उठाई अक्टूबर के अंदर कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बजट 100 करोड़ रुपए फिक्स किया गया था, 1027 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के थे ताकि वो हमारे गरीब बच्चों के साथ इंसाफ हो सके और उनको नौकरियां उन्होंने कारोबार कर सके, सब्सिडी पे वो लोन उठा सके। मगर ये इनकी काहली और इनकी नाहली, ये देखिए कि 9 महीने गुजरने तक भी ये खामोश बैठे रहे और एक आवाज की ऐवान में नहीं उठाई। इसकी वजह क्या है भाई? जब आप हमारी वोट देकर जब आप जाते हैं तो क्या हमारे यहाँ गरीब बच्चों का पढ़ने का हक नहीं है, इनको कारोबार करने का हक नहीं है, या इनको तरक्की करने का हक नहीं है? कि कौम जिस तरीके से जी रही है उसी तरीके से जीना, कौम तरक्की नहीं करना इनका मेन एजेंडा है, इनका नहीं, इनके बाप का भी यही एजेंडा था ताकि कौम सोती रहे और जैसे ये लोग राज करते रहे और कौम को ये लोग घोषणे में बेचते रहे। हजारों करोड़ रुपए अपने जेबों में भरते जाए। जब 75 करोड़ रुपए जब रिलीज होने की बात आई तो हमने आवाज उठाई, एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत हमने आवाज उठाई। तो जब किरण कुमार रेड्डी ने 75 करोड़ रुपए जब रिलीज किया, 27 दिसंबर तक हमने इसके बाद खिलाफ हम जैसे एहतजाज करते रहे और जैसे गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन करते रहे। जब 31 दिसंबर आया उस दिन जियो 101 के तहत 75 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए और ये खामोश करोड़ रुपए जियो 101 के तहत जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन को जो रिलीज हुए हैं उसके तहत आप तक नहीं पहुंचने के आते गवर्नमेंट ये जानबूझकर 15 जनवरी तक खामोश रही। मगर फिर जब हमने उनके खिलाफ आवाज उठाया तो गवर्नमेंट ने बता दिया कि ये 16 जनवरी को हमने ये जियो 101 हम ये रिलीज कर दिए हैं, आप इससे फायदा उठाइए। जब उसकी आखिरी तारीख रखी गई 31 जनवरी, क्या बताइए 15 दिन के अंदर जो सो रहा है मुसलमान बगैर किसी नोटिफिकेशन के आप रिलीज करके छुपा के रखने की वजह क्या थी गवर्नमेंट की?
फिर हमने 26 जनवरी को एहतजाज किया, धरना चौक पे धरना दिया। देने के बाद में हमने ये बता दिया कि इसके अंदर तारीख की तवज्जो होना चाहिए और ये सब पूरे मुसलमानों को मुल्क की सबसे बड़ी अहमियत को इसका हक मिलना चाहिए। तो जब जाकर 10 फरवरी तक टाइम दिया गया और ये तमाम तर मुसलमानों को फिर भी कुछ मौका मिला, जो भी कोई लेकर उसके तहत फॉर्म दाखिल कर रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना था। इंशाअल्लाह तमाम के वास्ते हमने नुमाइंदगी बरहाल करते आ रहे हैं नानाजी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, ताकि आपका हक मिल सके और आपको जो आप तक जैसे पहुंच सके बिना किसी खास मसले के। यार बहुत सारे मसाइल हैं कि ये आपके साथ जो हो रही है नाइंसाफी, ये उसके वास्ते आवाज उठाने के लिए ये इन जलसों का दिली बेदारी जो ईमान से जो जलसे मुनाकिब किए जा रहे हैं, ये आपकी खातिर ही जैसे ये जलसे मुनाकिब किए जा रहे हैं। एक बार आप डॉक्टर कायम खान को ऐवान में तो भेज कर देखिए, आपके साथ आपके मसाइल की किस तरीके से जो बात हो रही है और आपके ताल्लुक से किस तरीके से सिर्फ ये कोई एक एनबीटी या मैं बोल के बात होती है। आप ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन का मसला है। ये अगर आपके साथ अगर आपका नुमाइंदा अगर इलेक्ट होकर जाता है तो सही नुमाइंदगी करेगा और ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर कायम खान को हासिल होगा, ताकि होने वाले मुसलमानों के साथ ऐसे कई मसाइल है। TRR कॉलेज की बच्ची के साथ भी तो नाइंसाफी, मगर उसके खिलाफ आवाज मजलिस तहरीक उठाती आई है। इस तरीके से